to know about little bit about minoxidil. See, minoxidil is something that is used for जो मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है जो हार्मोन्स के वजह से होता है. एक और चीज मेरे जहन में बहुत टाइम से आ रही है सर, फेयरनेस को रिलेटेड. See, I would say is that कि people को instead of chasing fairness, they should chase healthy life, healthy skin. बिफोर टचिंग दीज टू टॉपिक्स हमने टैटूज के बारे में बात करी. तो मुझे उसके बारे में, सिंस जब मैं भी यंग थी तो मैंने भी अनवांटेड टैटूज करवाए हैं. कई बार इनकी क्वालिटी खराब होती है तो इससे रिएक्शंस होते हैं. सर जैसे हमने अभी ब्राइडल ट्रीटमेंट के बारे में बात करी, ब्राइडल ग्रुप ट्रीटमेंट के बारे में, सो उसे थोड़ा हम विस्तार में बताने की कोशिश कर सकते हैं कि एक डर्मेट के पास जाते हैं तो उनको कैसी कैसी एंड ड्यूरेशन क्या होता है ट्रीटमेंट को. सपोज एक्ने प्रोन स्किन है, एक्नेस है मल्टीपल, तो हम केमिकल पीलिंग या कार्बन पील एडवाइस करते हैं. खून के बाद का जो पीरियड होता है जो वो एक्चुअली टैन होके आते हैं, स्किन खराब करके आते हैं. सो डू वी हैव एनी मेंटेनेंस प्रोग्राम रिलेटेड टू दैट? ऑब्वियसली यस. नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स टॉक लाइफ. मैं हूं डॉक्टर चित्रा शुक्ला, अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एंड टुडेज एपिसोड इज गोइंग टू बी सो रिलेटेबल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट्स ऑन एवरीवन्स माइंड, लिटरली. हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, एक्ने, पिगमेंटेशंस, आजकल तो ये सब इतने कॉमन हो गए हैं, राइट? एंड यू नो व्हाट्स फैसिनेटिंग? As a psychologist, I see every day how our stress, our emotions, our lifestyle, सब कुछ reflects on our skin and hair. That's why I'm super excited to have Dr. Aditya Shah with us today. He's a second generation dermatologist, so dermatology literally runs in his blood. Dr. Shah has built an incredible practice with 3 clinics right here in Vadodara, 2 in major cities called as Surat and Ranchi, helping thousands of patients across these cities. And get this, his wife is an ENT specialist too, so healthcare and wellness are truly a family affair for them. Dr. Shah is here to break down all those modern hair care and skin problems we are facing, whether it's because of pollution, stress, या फिर our hectic lifestyles. So अगर आप भी struggle कर रहे हो with stubborn skin issues or hair problems, this conversation is definitely for you. Welcome to Let's Talk Life, to the podcast where 2 clinicians come together and relatively talk and make the viewers aware of what one person can break the myths of the other's specialization. Yes. Sir, as personally you know that how I am keen and मैं कितना इंटरेस्टेड हूँ स्किन एंड हेयर को लेकर. मैं भी आपको शायद बहुत परेशान करती हूँ. नहीं. Said that, let's dive in few questions that even I have and even my viewers also have. Okay. I have heard that you have 48 years of legacy. Could you please tell the viewers how it started and where it started? So basically I would say I am basically an accidental doctor. I never wanted to be a doctor. Looking at the lifestyle of my father, my uncle who was an orthopedic surgeon, other uncle who was anesthetist. So till 12th I had decided I would get into engineering. I eventually entered engineering as well, but 2 महीने के बाद I understood that this is not my cup of tea. Probably blood के अंदर biology ही है. So luckily during the second counseling I got an opportunity in MBBS and I got into Surat Medical College and I completed my MBBS. And after that, luckily, I got an opportunity to do dermatology. At that time, it was pure dermatology. But जब तक खत्म किया by 2012, 2013, the entire line had changed into aesthetic dermatology. So dermatology is advanced lasers, chemical peels, laser hair reduction, hair transplantation. All these treatments were evolving in India. So what I decided is that के पापा की आइडेंटिटी तो है, इतनी ज़्यादा लेगेसी तो है उनकी, बट मैं अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाऊँ. सो आई ऑप्टेड फॉर लेज़र ट्रीटमेंट्स की फैसिलिटीज़ इन माई क्लिनिक्स, लेज़र हेयर रिडक्शन, acne scar treatments, hair transplantation. Slowly and gradually I started. For 2 years I was practicing with him, but in 2014 I moved on to Alkapuri, my first clinic. And वहाँ पे एक अलग ब्रांड के साथ I started Aura Laser and Cosmetic Clinic to have a separate identity. कई बार क्या होता है कि फादर के शैडोज में रहते हैं तो लोग अप्रिशिएट नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते, तो I wanted to come out of that. So I created a new identity and gradually things started to move on. From one clinic we have now 5 clinics, 3 in Baroda and 1 in Surat and Ranchi. And with support of my father, my mother, and definitely my wife, things are going on great.
Lovely. That was an interesting answer, sir. And going forward, I also want to know what fascinated you towards aesthetic dermatology. I always believe is that you have to go with the flow. In 2012-13, I understood that patients' demands are changing. They do not only want medical treatment, but they also want a good aesthetic treatments to shorten the duration of treatments. Correct. And they are quite open from 2012-2013 to get chemical peels done, to laser treatments done. So it was for me to gradually jump into the field of aesthetic dermatology. I also saw that in Baroda, there are hardly any few clinics giving authentic laser treatments. So we were the first ones in Baroda to get the latest technologies of Luminous, Alma for laser hair reduction, Luminous technology for acne scar, and a Korean technology of Spectra for tattoo removal, carbon peeling, acne scar treatments. So gradually the journey started, and it has been a nice journey. It has been very blissful, I can say that. So because from one, and you made a statement from one, but now you have almost two other in the clinic, so altogether 3. Said that moving forward, sir, I would also want to know something about lasers. Even it happened that I walked in your clinic with my daughter, wanting to know more about the laser clinics, since she has a very sensitive skin. So I asked you, sir, what is the right age, when and how can we get it done? So could you put more light on that? See, laser hair reduction is a quite common procedure these days. Instead of waxing or threading or plucking, if you opt for laser hair reduction, your almost 70 to 80% of hairs would get destroyed. Your thick hairs would get thin, the quantity of hairs would reduce, and you would get a delayed growth. So in 6 to 8 sessions, there is a good amount of considerable reduction, and there is an occasional maintenance session required once in 1 year or once in 2 years, like that. So it's a safe procedure if anyone is above 15 years of age, anyone having hormonal issues, anyone having thick hairs on the parts of the body, those can opt for laser hair reduction. Very good answer, and that was the same answer you gave to me also. So yes, we covered the age, we covered when, and we covered where to do it. सर, तो आपकी सोच इस बारे में क्या है कि आजकल बहुत सारे सलून्स में भी ये प्रैक्टिसेस हो रही है. So is it recommended that saloons people are recommending laser treatments at their place at a very cheap cost? That is, ये बिल्कुल ही unregulated things है. Government should put a stop on all these things, क्योंकि किसी की स्किन के ऊपर बर्न्स आएंगे, डैमेज होगा, इरिटेशन होगा, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट कराएगा तो डेफिनेटली इफ एनी साइड इफेक्ट्स कोई होते हैं, देन डर्मेटोलॉजिस्ट कैन इजीली ट्रीट दो साइड इफेक्ट्स. सलून वाले के पास कोई डिग्री नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, पता नहीं वो लोग कैसे लेजर डिवाइसेस को प्रोक्योर करते हैं और अपने क्लाइंट्स के ऊपर करते हैं. ना प्रोटेक्टिव आईवेयर्स लेते हैं, ना स्किन को प्रॉपर्ली शेव करते हैं, रैंडमली बोलते हैं कि हर 10 दिन में आपको आके लेजर कराना है, तो उससे स्किन डैमेज होती है. तो कभी भी किसी को भी लेजर हेयर रिडक्शन कराना है तो एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, आपकी स्किन और हेयर सेफ रहेंगे एंड कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे. Correct. Sir, that one more thing comes in my mind immediately. Sir, I think so in previous before touching these two topics, हमने tattoos के बारे में बात करी. तो मुझे उसके बारे में, since जब मैं भी यंग थी तो मैंने भी unwanted tattoos करवाए हैं, जो मुझे कभी-कभी लगता है कि हाँ नहीं करवाने होने चाहिए. So is there any correct age कि वो tattoo removal कर सकते हैं, and are there any side effects of it? See, tattoos के बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक पर्सनल चॉइस होता है, पर हमेशा एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के पास ही आप करवाइए. क्या इंक आपके बॉडी के अंदर जा रही है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इंक की क्वालिटी खराब होती है तो उससे रिएक्शंस होते हैं. पेशेंट्स आते हैं कि मैंने 5 दिन पहले टैटू करवाया, अभी मुझे रिमूव कर दो. नहीं कर सकते उसको रिमूव, आपको वेट करना पड़ता है. एंड जो डिज़ाइनर टैटूज होते हैं, मल्टी कलर टैटूज होते हैं, तो वो रिमूव नहीं कर सकते. तो टैटू कराइए, पर एक बार सोच के कराइए कि एक बार कराते हैं तो निकालना उतना ही डिफ़िकल्ट होता है. जो मेले में बनाते हैं टैटूज उसको इजीली 3-4 सेशंस में हम निकाल सकते हैं, पर प्रोफेशनल आर्टिस्ट के टैटूज में 70-80% रिडक्शन मिलता है. 10 to 20% शैडोइंग इफेक्ट तो रहता ही है. तो वो, और उसके अलावा वो निकालने में, प्रोफेशनल टैटूज निकालने में 1-2 साल का टाइम चला जाता है. तो हमेशा डिसाइड करके ही टैटू करवाइए.
एंड ओवरलैपिंग टैटूज भी नहीं कराइए, क्योंकि एक बार ओवरलैप टैटूज कराते हैं तो वो भी निकालना पॉसिबल नहीं होता है। आगे बढ़ते हुए सर, मुझे ये क्वेश्चन ऐसा है जो हम दोनों प्रोफेशंस को बहुत ही डीप डाइव टच करता है, स्किन प्रॉब्लम्स एंड द डिप्रेशन रिलेटेड टू बॉडी शेमिंग बिकॉज ऑफ द स्किन कलर, एंड आई थिंक सो वी हैव शेयर्ड अ पेशेंट रिगार्डिंग दिस। तो इसमें थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देके लोगों को अगर समझा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा फॉर एग्जांपल कि एक 20 साल की लड़की है जो एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहती है और उसको एक्नेस हो गए हैं और उसका इंटरव्यू है इंडिगो के साथ या कोई प्रोमिनेंट एयरलाइंस के साथ। वो आती है और बोलती है 5 दिन में मुझे सब एक्नेस को रिमूव करो या फिर कुछ मैजिक करो ताकि मेरी स्किन नॉर्मल हो जाए। तो वैसे चैलेंजिंग केसेस आते हैं। सो उसमें हम बोलते हैं कि आपको टाइम देना पड़ता है, तो वो बोलते हैं कि टाइम नहीं है अपने पास, एंड देन वो गिल्ट में चले जाते हैं कि मैंने जल्दी क्यों ट्रीटमेंट नहीं कराई, मैंने लाइफस्टाइल अपना क्यों इम्प्रूव नहीं किया, मुझे ही क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इतनी टैलेंटेड हूँ फिर भी मैं स्किन के वजह से सिलेक्ट नहीं होंगी। सो वैसे केसेस में डिप्रेशन आता है। पहले तो 13-14 ईयर्स के लोग होते थे, चिल्ड्रंस होते थे, तो उन लोगों को एक्नेस होते थे, उनको कोई टेंशन नहीं होता था, पेरेंट्स को भी नहीं होता था। अभी तो एक एक्ने होता है फिर भी पेरेंट्स आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे लड़के को या लड़की को एक एक्ने हो गया है, वो स्कूल नहीं जा रही है। सो इट इज डेफिनेटली हिटिंग, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया में काफ़ी स्किन इन्फ्लुएंसर्स है जो जिसके पास डिग्री ही नहीं है, वो गलत गलत क्रीम्स एडवाइस कर देते हैं ऑनलाइन, बोलते हैं कि कोरियन प्रोडक्ट्स लगाइए आपकी स्किन में मैजिकल चेंजेस आ जाएंगे, अनरेगुलेटेड क्रीम्स बेचते हैं। सो ये लोग सब उनको फॉलो करते हैं, फिर रिजल्ट्स नहीं आते तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका कम हो जाता है, एंड देन दे गेट इनटू द साइकिल ऑफ मतलब गिल्ट, डिप्रेशन एंड एवरीथिंग। तो उस वक्त आई थिंक कि स्किन डॉक्टर के साथ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भी बहुत बड़ी रोल होती है ऐसे पेशेंट्स को गेट देम बैक ऑन ट्रैक। ट्रू सेड दैट, बिकॉज वो लोग बाय द टाइम वो लोग हमारे पास आते हैं तो ऑलमोस्ट देयर इज अ पिंच इन द पॉकेट। यस, बिकॉज वो लोग वहां पे ट्रस्ट लूज कर चुके होते हैं, एंड हमारे पास वो लोग एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आते हैं हमेशा फ्रेम में कि मैंने इतना टाइम में 2 साल से ये प्रोडक्ट को कर रही हूँ, लाइक इन बिटवीन देयर इज अ वेरी बिग ब्रांड, आई डोंट थिंक सो वी शुड नेम इट। वो हमेशा ना ये लोगों को भरोसा दिलाते थे कि इफ यू पुट दिस आप बहुत फेयर हो जाओगे। Yes, right? Yes. So there are many big organizations also, and they have placed a remarkable mark, double tick बोलते हैं ना उनके दिमाग पे, तो वो निकालते निकालते I think it takes a toll. Yes. Recently, as we were speaking, मैंने last time I think so I discussed this case with you कि there was a girl, उसकी शादी होने वाली थी, the body shaming का ये था कि not only she had this very curvy body, but she had this color also. More than the in-laws, उसके खुद के parents were ashamed of her skin color. Right. And that how we came in between and we did some interventions, and that now she is very happily married. Right, correct sir? Yes. So जानने की बात ये होती है, लोगों को अगर बहुत जल्दी awareness मिल जाए तो it can be reached, that a dermat can do a beautiful job along with the help of a psychologist. Yes. मूविंग फॉरवर्ड सर, आजकल का जो ब्राइड्स ग्रूम ट्रीटमेंट होता है, कुछ उस पे लाइट दर्शाइए। तो पहले क्या होता था कि ब्राइड्स ग्रूम्स अपने पैकेजेस सैलून में ले लेते थे मेकअप के लिए, पर कोई अपनी स्किन को अंदर से क्लियर नहीं करता था। तो मैं यही बोलता हूँ कि सपोज आपकी शादी 6 महीने के बाद है, द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर आउटपुट आ सकता है, राइट फ्रॉम केमिकल पीलिंग, लेजर ट्रीटमेंट्स, लेजर हेयर रिडक्शन, मेडिकेटेड फेशियल्स हम पीरियोडिकली करते हैं तो स्किन के अंदर काफी अच्छा नेचुरल ग्लो आता है। Correct. अभी 2 दिन पहले की बात करो कि हमने एक ब्राइड की ट्रीटमेंट की थी फॉर अ पीरियड ऑफ 6 to 8 months। शी जस्ट केम पोस्ट हर वेडिंग एंड शी सेड कि मुझे बहुत लाइट मेकअप यूज करना पड़ा, तो दैट वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर अस, क्योंकि ज्यादा मेकअप यूज करने की वजह से रिएक्शंस भी आते हैं फेस के ऊपर। करेक्ट। सो दैट इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर आउटपुट इट इज। सर जैसे हमने अभी ब्राइडल ट्रीटमेंट के बारे में बात करी, ब्राइड एंड ग्रूम ट्रीटमेंट के बारे में, सो उसे थोड़ा हम विस्तार में बताने की कोशिश कर सकते हैं कि एक डर्मेट के पास जाते हैं तो उनको कैसी कैसी एंड ड्यूरेशन क्या होता है ट्रीटमेंट को, सो उसको थोड़ा और बताइए।
सपोज एक्ने प्रोन स्किन है, एक्नेस है मल्टीपल, तो हम केमिकल पीलिंग या कार्बन पील एडवाइस करते हैं 5 to 6 सेशंस एट द गैप ऑफ 15 डेज, तो उसमें 3 महीने ऑलमोस्ट लगेंगे। उसके बाद किसी को एक्ने स्कार्स होंगे तो 2 या 3 सेशंस ऑफ फ्रैक्शनल CO2 लेजर विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द एक्ने स्कार्स। और शादी से पहले वी कैन रिकमेंड हाइड्राफेशियल और एनी अदर माइक्रोडर्म बेस्ड मेडिकेटेड फेशियल। इफ पिगमेंटेशन वाली स्किन है then we can start off with Q-switch laser along with chemical peels in reducing the tanning and pigmentation, and after that the same hydrofacial या microderm facials will take care of the skin। उसके अलावा फीमेल्स के लिए बॉडी पॉलिशिंग थ्रू लेजर्स या फिर माइक्रोडर्म मशीन दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सैलून ट्रीटमेंट्स, सेफर एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स जिसमें इंस्टेंट ग्लो आ जाता है बैक पॉलिशिंग से या फुल बॉडी पॉलिशिंग से। दोज कैन बी रिकमेंडेड 2 or 3 सेशंस बिफोर देयर वेडिंग्स। एंड ऑब्वियसली अनवांटेड हेयर्स के लिए 6 to 8 months पहले लेजर हेयर रिडक्शन इज द मस्ट गो टू ट्रीटमेंट। किसी को अंडर आई हॉलोनेस है या बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है तो वो फिलर्स करा सकते हैं अंडर आईज में। लिप्स के में भी सपोज किसी के ड्राई लिप्स होते हैं तो लिप फिलर्स कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द हाइड्रेशन एज वेल एज द शेप ऑफ द लिप्स। So all these treatments if done adequately at a spaced out time 6 to 8 months before the wedding will give good and safe results. Okay. And sir, post I think so honeymoon के बाद का जो period होता है जो वो actually tan होके आते हैं, skin खराब करके आते हैं. So do we have any maintenance program related to that? Obviously yes, it depends कि कितना damage लेके आए हैं. Suppose minor है तो 1-2 medicated facials will definitely take care. बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज लेके आए हैं तो मेडिकेशन अलॉन्ग विद केमिकल पील्स या लेजर ट्रीटमेंट्स विल डेफिनेटली हेल्प इन मेंटेनिंग द स्किन। ओके सर, देयर इज वन मिथ आई हैव बीन हियरिंग अ लॉट इन माय इयर्स के मतलब जनरली हमारे जो कपल्स होते हैं, यंग कपल्स, वो लोग हमेशा बेसिकली जो वाटर बॉर्न एरियाज होते हैं वही हनीमून डेस्टिनेशन जैसे मॉलडीव्स हो गए, मॉरिशस हो गया या फिर यू नो लाइक समथिंग व्हिच कंटेन्स लॉट ऑफ बाली हो गया वाटर, so they are continuously connected with this sea water. So does our treatment actually comes in contact with the body and destructs the things treatment that they have taken out here? No, it's nothing वो right? प्रॉपर्ली मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाएंगे तो उनकी स्किन डैमेज नहीं होगी। सो ये मिथ ही है ना कि मतलब हम ट्रीटमेंट करके जाते हैं तो पानी में नहीं उतर सकते, नहीं जा सकते बिकॉज आई हैव टेकन अ ट्रीटमेंट ऑफ माय बॉडी तो माय बॉडी विल स्टार्ट इरप्टिंग, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यू कैन एंजॉय योर हनीमून टू द फुलेस्ट, बाद में आके मेंटेनेंस पैकेज ले सकते हैं। यस, जैसे हमने ब्राइड एंड ग्रूम की ट्रीटमेंट की बात करी, सब इट इज नॉट एन ओकेजन ओनली दैट ब्राइड एंड ग्रूम आर गेटिंग मैरिड, टू फैमिलीज आर कमिंग टुगेदर, सो कैन वी सेंड अ मैसेज टू द फैमिली पीपल्स आल्सो दैट दे शुड आल्सो पार्टिसिपेट इन टेकिंग केयर ऑफ द स्किन? सिर्फ हेवी कपड़े पहनने से हम सुंदर तो नहीं लग सकते, right? So I think so we are urging and telling everybody that why they should also participate in this types of treatments. Yes, they should actually, and definitely हमारे क्लिनिक्स में ब्राइड और ग्रूम के अलावा जो रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए भी कस्टमाइज पैकेजेस होते हैं, एंड डेफिनेटली एक बार कंसल्टेशन स्किन एनालिसिस कराते हैं तो उसके बाद वी डेफिनेटली गाइड देम। वी आर द फर्स्ट क्लिनिक इन बड़ौदा टू लॉन्च द AI स्किन एनालिसिस जो 30 सेकेंड्स में आपकी स्किन का रिपोर्ट एक्यूरेटली आपको दे सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्नोलॉजी हम ट्रीटमेंट्स को गाइड करते हैं एंड उनको भी एक साइंटिफिक एविडेंस मिलता है कि उन्होंने ट्रीटमेंट कराई तो उनकी स्किन इतना इम्प्रूव हुई है। सो इट इज अ साइंटिफिकली बैक्ड ट्रीटमेंट। एंड सर ये AI जो आपने बताया कि इट जनरेट्स एन रिपोर्ट, स्किन रिपोर्ट इमीडिएटली, तो उसका ड्यूरेशन क्या होता है कि अगर मैंने आज निकाला और आज आपसे बात करी लेकिन पर्सन डिसाइड्स टू कम आफ्टर 30 days, राइट? सो अगेन वन पर्सन हैज टू गो अंडर AI? See, we definitely tell them कि मंथली एक बार रिपोर्ट आप करिए तो हमको पता चलेगा कि स्किन में इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं आया है। इफ नहीं आया है देन वी कैन एक्सप्लोर दोज एरियाज के वो केयर क्या नहीं रह रहे, या फिर कोई ट्रीटमेंट उनको सूट नहीं हो रही देन वी कैन चेंज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अभी बेसिकली ये ट्रेंड में है एंड इसकी मैंने बहुत सारी रील्स देखी है that people are talking a lot about glutathione. So please, if you can share more about it. See, bridal groom के अलावा normal people भी glutathione ले ही रहे हैं। Glutathione I am someone के मैं upfront patients को बताता नहीं हूँ कि आप कराइए, क्योंकि जो लोग ये बात को समझते नहीं है उनको ये ट्रीटमेंट देने का कोई फायदा नहीं है।
लोग समझते हैं कि ग्लूटाथायोन ले लिया और हम गोरे हो जाएंगे, यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज की तरह हमारी स्किन हो जाएगी। मैं बोलता हूँ नहीं होता है। ग्लूटाथायोन से आपकी स्किन हेल्दी होती है एंड ओवरऑल बॉडी में इम्यूनिटी का भी बूस्टिंग होता है। तो जो ये बात समझते हैं एंड जो ये ट्रीटमेंट को एक एडजुवेंट थेरेपी की तरह लेते हैं अलॉन्ग विद स्किन केयर, अलॉन्ग विद अदर ट्रीटमेंट्स, उनको ही मैं बोलता हूँ कि आप ट्रीटमेंट कराइए। क्योंकि एक तो ये ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होती है एंड सपोज पेशेंट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आए देन पेशेंट गेट्स डीमोटिवेटेड। सो जो प्रॉपर्ली समझता है कि ओवरऑल ग्लो के लिए या ओवरऑल हेल्दी स्किन के लिए, ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, उनको ही मैं देता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लूटाथायोन थेरेपी, वन इज द बेसिक एंड वन इज द एडवांस। बेसिक में हम खाली ग्लूटाथायोन को इंजेक्ट करते हैं, एडवांस में हम ग्लूटाथायोन के साथ विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कोलेजन एंड जिंक को भी इंजेक्ट करते हैं। So that gives an overall glow to the body. Initially 4 sessions are placed at a gap of 7 days, उसके बाद 15 days and उसके बाद maintenance as and when required. But remember, कोई बोलेगा कि ग्लूटाथायोन ले लो और आप गोरे हो जाओगे, तो आप नहीं होगे। So again, it's a myth only, and yes. I'm very thankful that you broke that myth today, that it is Yes. no. And so said that आजकल reels में ये भी बहुत होता, दिखाया जाता है that taking only this ग्लूटाथायोन जैसी ही बहुत सारी मेडिसिन आती है विच इज रिस्पॉन्सिबल, जैसे कोलेजन की आपने बात करी कि जस्ट टेक दिस कोलेजन एंड आपकी स्किन बेबी जैसी एकदम बबली हो जाएगी एंड इट विल बी लाइक यू कैन फील द बबल ऑफ इट। तो उसमें कितनी हकीकत है? ये सब इट्स एन एडजुवेंट थेरेपी। आप स्किन केयर के साथ लेंगे तो आपको ओवरऑल इम्प्रूवमेंट मिलेगा, पर ये एक चीज, ये हीरो प्रोडक्ट नहीं है कि भाई आपने पानी में डाला और पी लिया और 3 महीने तक पिया तो आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। कोलेजन की बात करेंगे तो जो बोटॉक्स, फिलर्स और थ्रेड लिफ्ट्स में रिजल्ट मिलेगा वो कोलेजन खाने से नहीं मिलेगा। हाँ, कोलेजन खाने से रिजल्ट मेंटेन रह सकता है पर वो उतना ड्रास्टिक चेंज नहीं ला सकता। सिमिलरली कोई पिगमेंटेड, बहुत ही पिगमेंटेड स्किन है तो उसमें खाली ग्लूटाथायोन काम नहीं करेगा, उसके साथ सनस्क्रीन, नाइट क्रीम्स और प्रोसीजर्स काम करेंगे। सो पहले आप सब चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, फिर ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ये सब प्रोडक्ट्स। बट टू माय अंडरस्टैंडिंग इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू सी योर डर्मैट एंड देन एक्सप्लोर द आइडियाज दैट यू वांट टू, राइट? Agreed, sir. Moving forward, sir, this is something my personal experience, and but I would want you to give me more information. Is HydraFacial magical? See, HydraFacial is something that will give glow to your skin, right? But where you get it done is important. सलून में जो HydraFacial ट्रीटमेंट होती है वो ट्रू HydraFacial ट्रीटमेंट नहीं है। HydraFacial MD ट्रीटमेंट एक ओरिजिनल ट्रीटमेंट है जो USA में वहाँ से शुरू हुई है एंड अभी धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में वो ट्रीटमेंट वायरल हुई है। तो उसका जो ओरिजिनल डिवाइस आता है दैट कॉस्ट अराउंड 15 to 20 lakhs एंड उसमें जो सिरम्स आते हैं दोज आर क्वाइट एक्सपेंसिव। तो चाइनीज पीपल ने क्या किया है कि रेप्लिकेटेड मॉडल्स बना दिए हैं एंड वो लोग दूसरे सिरम्स यूज करते हैं। सो eventually you are not getting the right HydraFacial treatment done if you are getting it done at a salon. So HydraFacial MD एक ओरिजिनल डिवाइस है जिससे कंट्रोल्ड वे में एक्सफोलिएशन होता है, हाइड्रेशन मिलता है एंड उसके साथ LED ट्रीटमेंट्स एक सूदिंग इफेक्ट देती है स्किन को फॉर इंस्टेंट ग्लो। पर वो आपके कंडीशंस जैसे एक्ने है, पिगमेंटेशन है, उसको ट्रीट नहीं करते। कई सलून्स मार्केट करते हैं कि HydraFacial करा दो आपका मेलाज्मा चला जाएगा, पर वो नहीं होगा। HydraFacial करा दो आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स गायब हो जाएंगे, वो नहीं होगा। HydraFacial MD कराइए, then you will get a good glowing skin that would stay for a longer period of time. True. And said that क्या सर HydraFacial का जो रिमेनिंग वो कितने टाइम तक सस्टेन रहता है if we get it done once? Once है वो आपकी स्किन के रूटीन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। Okay, so there is a routine to be followed. Yes. Okay. Yes. So is there anything that even dermat tells that like other organizations के toner use करो, cleanser use करो and then moisturize your body or some moisturize your skin, something like that? Do we also have some steps like that? So I to tell कि keep it simple. सुबह के टाइम पे moisturizer, sunscreen, रात के टाइम पे एक serum और face wash 2 time is more than enough. More than enough. We don't have to do those 7 to 8 Korean steps for a healthy glowing skin. We are Indian and basic steps will definitely help our skin glow.
ओके सर, तो वो दादी नानी के जो नुस्खे थे हाँ. कि वो चने का आटा लगा लो, मलाई लगा लो, सो क्या हमें उसमें सफिशिएंट, डू वी गेट दैट रिजल्ट्स, या फिर इट इज जस्ट टेम्पररी सॉल्यूशंस? डन इट इन द राइट वे तो टेम्पररी रिजल्ट देगा, ओवर यूज करने से स्किन सेंसिटिव हो सकती है। सो डेफिनेटली कुछ तो बेनिफिट्स है सर, मैं नहीं कहूँगा कि बेनिफिट्स नहीं है, बट ओकेजनली यू कैन डू होम रेमेडीज, पर साथ में ये प्रोडक्ट्स भी आप यूज करिए। Yeah, but I think but without an intervention Yes. of a dermatologist, one should not, because you don't Yes. know your skin. Yes. So अगर आप एक बार एक डर्मेट से मिले हो, आपके बिल्कुल। स्किन का अपने कच्चा चिट्ठा जाना है, तो ही आप शायद इस चीज में आगे बढ़ सकते हो, Yes. राइट? Yes. अदरवाइज आप अपने उसमें भी बर्न्स कर सकते हो ना, राइट? सो बिल्कुल। इट कैन रिलेट Yes. टू बर्न्स। Yes. Moving forward, sir, I wanted to know about little bit about minoxidil. Okay. So what is it? How do we continuously use it once we start it? See, minoxidil is something that is used for जो मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, जो हॉर्मोन्स के वजह से होता है, उसमें हम मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं। इसमें एक ही चीज है कि जब तक आप यूज करोगे तब तक अच्छा रिजल्ट आएगा। आप एब्रप्टली उसको बंद कर दोगे देन यू विल एक्सपीरियंस हेयर लॉस। तो हम रेकमेंड करते हैं कि उसको ग्रेजुअली टैपर करो एंड उसके बाद आप नॉन मिनॉक्सिडिल सीरम्स को लंबे टाइम तक यूज करो टू मेंटेन द रिजल्ट्स। कई लोग क्या करते हैं कि 5-6 महीने यूज करने के बाद बंद कर देते, तो देन दे एक्सपीरियंस हेयर loss again. So it's a right drug if used it in a correct way. Correct way. But again, it should be from a dermat. Yes. It should not be your own decision. Yes. So correct. So said that कि जो कोई bald होता है, तो does minoxidil work for it? कि या फिर for them it is another hair transplant treatment that you It think? depends on the grade of baldness. Grade 1-2 में definitely minoxidil helps, but 3-4 में the response is not that good. 5-6 में तो भूल ही जाने का कि कोई रिजल्ट देगा वो। Okay, so the company which is telling you that like हम आपके blood को मतलब निकाल के induce करेंगे and all those things, I think it is far reached, something that they are like fishing in the lake which doesn't has any fish only, I guess. So I always tell my patient is that कि एक बार आपका स्किन एंड हेयर चेक कराओ, आपको क्या ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड करेगी वो डर्मेटोलॉजिस्ट बताएगा। सपोज आपके लिए कोई ट्रीटमेंट जा रही है, वो आपके फ्रेंड या ब्रदर के लिए नहीं जाएगा। Correct. It is quite subjective and customized treatment plans always work well. True. जैसे 5 उंगलियां सेम नहीं होती है, Yes. वैसे ही हर एक की Yes. स्किन पैटर्न, इवन द स्किन जो जिसके बायोमेट्रिक पैटर्न्स है वो सेम नहीं होते। Yes. एवरीवन इज बोर्न विद एन इंडिविजुअलिटी। Yes. एक और चीज मेरे Yes. जहन में बहुत टाइम से आ रही है सर, फेयरनेस को रिलेटेड। आप थोड़ा उस पे और मुझे समझा सकते हैं कि पीपल आर क्रेजी अबाउट दिस फेयरनेस। उसमें ऐसा क्या है कि पीपल नॉन स्टॉप इसके बारे में चैटर करते हैं एंड दे डिस्कस द कलर ऑल्सो ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्किन के, इफ यू आर दिस स्किन कलर देन आपके पे यही कलर सूट होते हैं। पुट सम मोर लाइट ऑन दैट ऑल्सो। So I would say is that कि people को instead of chasing fairness, they should chase healthy life, healthy skin, healthy वो diet को follow करे, healthy life lead करे। क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि सपोज आप ये क्रीम लगा दोगे आप गोरे हो जाओगे, नहीं होंगे। हम इंडियन स्किन टाइप है, हमारी जो स्किन टाइप होगी वो ही स्किन टाइप रहेगी। हाँ, जो ओवर द इयर्स सन के वजह से डैमेज हुआ है या फिर बॉडी हार्मोनल के वजह से डैमेज हुआ है, उन सबको हम कम कर सकते हैं। तो आई वुड चेज दैट कि आपका एंड रिजल्ट होता है कि हेल्दी स्किन, नॉट फेयरनेस, राइट? क्योंकि एक बार आप फेयरनेस के चक्कर में घुस जाओगे तो यू विल एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। आपको डिप्रेशन भी आ सकता है एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। ट्रू। स्ट्रेस, एंजाइटी के प्योर एग्जांपल्स ये सब होते हैं, बिकॉज ये कंटिन्यूअसली सर एक ऐसी फॉल्स गेम है जिसमें लोग चलते ही जाते हैं और उसमें ना इट्स लाइक अ डीप टनल। दे डोंट, वंस दे स्टार्ट इट्स नेवर एंडिंग। डॉक्टर शाह, ऑन अ सीरियस नोट, आपने विटलिगो के बारे में तो ऑफ कोर्स सुना है, जिसे हम सफेद दाग भी बोलते हैं। पेशेंट विद विटलिगो सफर्स साइकोलॉजिकली, नॉट ओनली द पेशेंट बट द फैमिली ऑल्सो हैज सम traumas regarding it. So medically and psychologically, how do we come at one page? See, विटिलिगो मतलब एक ऐसा ही स्किन का प्रॉब्लम है जिसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पेशेंट को, पेशेंट के पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को बहुत इम्पैक्ट करता है। कई बार हमारे क्लिनिक में ऐसे केसेस आते हैं कि
डॉक्टर परसों हमारी एंगेजमेंट है एंड लड़की को लेग्स के ऊपर एक वाइट दाग है, चेक करके बोलो कि विटिलिगो है कि नहीं है। मैं लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, पर मेरे पेरेंट्स अपोज कर रहे हैं, तो आप बोल दो कि ये विटिलिगो का पैच नहीं है। तो ऐसे ट्रिकी सिचुएशंस आते हैं हमारे प्रैक्टिस के अंदर। आई वुड सजेस्ट इज दैट कि विटिलिगो को एक स्किन डिजीज की तरह ही ट्रीट करो, उसको बहुत बड़ा नहीं बनाओ, एक सोशल स्टिग्मा नहीं बनाओ, क्योंकि उससे बहुत डिप्रेशन होता है। कई लोगों के मैरिजेस ब्रेकअप हो जाते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो मेडिकल ट्रीटमेंट तो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट वी डू प्रोवाइड, जिसमें मेडिसिन आती है, एक्साइमर लेजर्स आते हैं, फ्रैक्शनल CO2 माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट्स आती है, या फिर विटिलिगो सर्जरी आती है। एंड नाउ तो जैसे हमारा क्लिनिक इज नाउ एसोसिएटेड विद यू, वी आर वेरी हैप्पी कि हम ये विटिलिगो पेशेंट्स को आपके वहाँ पे रेफर करेंगे, सो दैट दे कैन गेट दैट साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस। वरना क्योंकि वो लोग को हिम्मत हार जाते हैं, जब हिम्मत हार जाते हैं तो कई बार दवाई भी काम नहीं करती है। करेक्ट। सो मोटिवेशन, इंकरेजमेंट, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर घर के अंदर रखने के लिए आई थिंक आप और आपकी टीम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेंगे, जिससे हमारे ऑरा के विटिलिगो पेशेंट्स को एक एडेड बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर स्टेटिंग दैट। एंड सर, उसके साथ इमीडिएटली एक क्वेश्चन मन में आता है, पीपल विथ विटिलिगो ऑलवेज हैव सेड, मतलब जिनको है वो तो डरते ही है कॉमन पीपल के साथ उठने बैठने के लिए, बट इज इट अ कंटेजियस डिजीज? इट इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज। अ विटिलिगो पेशेंट इज एज हेल्दी एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल। सो प्लीज ये सब नहीं स्प्रेड करिए, उनको अच्छी तरीके से ट्रीट करिए, वो भी डिजर्व करते हैं टू मूव कॉन्फिडेंटली इन द सोसाइटी। ट्रू। लेकिन सर दैट डू यू हाउ डज द एनाटॉमी ऑफ अ विटिलिगो से होता कैसे है सर? सी विटिलिगो में एक्चुअली पिगमेंटेशन, जो मेलेनिन होता है, वो प्रोडक्शन बंद हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली मेडिकल साइंस ने नहीं ढूंढ निकाला है इसका एग्जैक्ट कॉज। द कॉमन कॉजेज जो लोग एज्यूम करते हैं, मतलब साइंटिस्ट और मेडिकल रिसर्चर्स एज्यूम करते हैं, खाने में कुछ आ गया उसके वजह से, या हार्मोनल चेंजेस, या स्ट्रेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। Last not the least, but sir, would you like to give some message for our viewers that how and why dermatology is a very sensitive topic, and that you would want your message to be loud and clear? So thank you audience. So I would like to tell is that के कभी आप सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करो, इसके बदले आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो। डर्मेटोलॉजिस्ट आप इज द बेस्ट पर्सन जो आपकी स्किन और हेयर को ट्रीट कर सकता है इन द राइट वे। ऑल्सो जब भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ मेडिकल हिस्ट्री को शेयर करो, तो उसमें आप डेफिनेटली आपका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू या इमोशनल डिस्टर्बेंस के बारे में भी हाईलाइट करो, क्योंकि इफ यू विल हाईलाइट इट, तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विल टेक केयर ऑफ दैट प्रॉब्लम एज वेल, along with your skin, diet and healthy lifestyle, making it a 360-degree health and wellness improvement for you. वाओ डॉक्टर शाह, क्या बात है। आज की कॉन्वर्सेशन तो काफी इंसाइटफुल है। आई थिंक हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करी, हेयर फॉल के रूट कॉजेस से लेकर अनस्टेबल स्किन प्रॉब्लम्स तक, जो आजकल के ऑलमोस्ट सबके परेशान कर रहा है। आप जानते हैं, मुझे आज के डिस्कशन में जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो ये समझना कि सब कुछ कितना इंटरकनेक्टेड है। हमारी मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस लेवल्स, डाइट, नींद, सब कुछ इम्पैक्ट करता है हमारे स्किन और हेयर पर, और इसलिए ऐसे कॉन्वर्सेशंस इतने जरूरी है। हमें वेलनेस को होलिस्टिकली देखना चाहिए, सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट करने से काम नहीं चलेगा। थैंक यू डॉक्टर आदित्य शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर शेयरिंग योर एक्सपर्टीज विद अस टुडे। जो भी लिसनर सुन रहे हैं और डॉक्टर शाह से कंसल्ट करना चाहते हैं, उनके वडोदरा में 3 क्लिनिक्स है, सूरत में 1 और रांची में भी 1 क्लिनिक है, तो आप इजीली उनसे मिल सकते हैं। If you enjoyed today's episode, don't forget to subscribe to Let's Talk Life. Share it with your friends and your family and leave us a review. और हाँ, if you have any topics you'd like us to cover in future episodes, do let us know in the comments. Until next time, take care of yourself, mind, body and soul. This is Dr. Chitra Shukla saying, let's keep talking life.